بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالواسطہ ٹیکس اور عام آدمی۔ وفاقی اور صوبائی میزانیوں میں عوام کو یہ کہہ کر خوش کر دیا جاتا ہے کہ ان پر کوئی نیا محصول عائد نہیں کیا گیا، لیکن جب ان کی گردن ہاتھ گھما کر پکڑی جاتی ہے تو ان کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ تحریر رضوان احمد طارق۔ پاکستان میں یہ وفاقی اور صوبائی میزانیوں کا موسم ہے۔ دہائیاں پہلے عوام وفاقی اور صوبائی وزرائے خزانہ کی تقاریر سننے کے لیے تمام کاموں سے خود کو فارغ کر کے ریڈیو اور ٹی وی کے گرد جمع ہو جاتے تھے۔ بہت سے مقامات پر یہ تقاریر سننے کے لیے خاص اہتمام بھی کیا جاتا اور گلی محلوں میں جمع ہو کر پیش کیے جانے والے اعداد و شمار بہت توجہ سے سنتے تھے۔ لیکن جوں جوں یہ میزانیے عوام کی روزمرہ زندگی میں کسی تبدیلی کا سبب بننے سے تاثر ہوتے گئے اور رحمت کے بجائے رحمت ثابت ہونے لگے تو عوام نے ان پر توجہ دینا کم کر دی۔ رہی صحیح کسر منی بجٹ کی نئی روایت نے پوری کر دی۔ اب عوام بس یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی شے مصنوع یا خدمات کتنی مہنگی ہوئیں اور کون سے نئے محاصل لگے۔ دوسری جانب ہر حکومت میزانیے میں عوام کو سہولت فراہم کرنے کے دعوے کرتی نظر آتی ہے اور ہر دور کی حزب اختلاف میزانیے کو عوام دشمن ثابت کرنے پر تلی دکھائی دیتی ہے۔ اس سارے کھیل کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں اعداد و شمار کا ایسا گورکھ دھندا ہوتا ہے کہ عام آدمی کا سر چکرانے لگتا ہے۔ وفاقی اور صوبائی میزانیوں میں عوام کو یہ کہہ کر خوش کر دیا جاتا ہے کہ ان پر کوئی نیا محصول عائد نہیں کیا گیا ہے، لیکن جب ان کی گردن ہاتھ گھما کر پکڑی جاتی ہے تو ان کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ حکومت کہتی ہے کہ نئے عائد کردہ محاصے سے عوام پر بوجھ نہیں پڑے گا، لیکن پاکستان کے نظام معیشت سے ذرا سی بھی واقفیت رکھنے والا فرد بخوبی یہ جانتا ہے کہ ہمارا سیٹ، ساہوکار، بینکار، تاجر، لٹیرا، دکاندار یا مل کا مالک کسی بھی نئے محصول کا بوجھ خود نہیں اٹھاتا، بلکہ اس میں کچھ اضافہ کر کے اسے عوام کے کاندھوں پر ڈال دیتا ہے۔ اس طرح اس ملک میں ہر طرح کے بے راہ راست یا بالواسطہ محصول کا بوجھ دراصل عوام ہی اٹھاتے ہیں۔ عام آدمی کی پتلی گردن مروڑ کر اس سے ہر قسم کا ٹیکس وصول کر دیا جاتا ہے، پھر بھی کہا جاتا ہے کہ لوگ ٹیکس کم دیتے ہیں۔ ہاں، جاگیردار کی زرعی آمدن پر ٹیکس لگانے کی ہمت کسی حکومت نے نہیں کی، کیونکہ ان میں سے بیشتر پارلیمان میں حکومت کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ جان لیجیے کہ ملک میں زیادہ تر ٹیکس بالواسطہ یا انڈائریکٹ نظام سے حاصل ہو رہا ہے اور وہ تقریباً ہر پاکستانی ادا کر رہا ہے۔ حال ہی میں پیش کردہ وفاقی میزانیے کے مطابق رواں مالی سال میں کسانوں کو 3100 ارب روپے آمدن ہوئی، جو گزشتہ سال 2300 ارب روپے تھی۔ گندم، گنے اور چاول کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے، لیکن در حقیقت 31 یا 2300 ارب کسانوں کی آمدن نہیں بلکہ جاگیرداروں کی جیب میں جانے والی رقم ہے جس پر وہ مسعود ادا نہیں کرتے۔ حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا اور طاقتور گروہوں کو ملنے والی ٹیکس چھوٹ کا خاتمہ کیا جائے گا، مگر وہ چھوٹ کیسی ہے اور ان کا خاتمہ کیسے ہوگا، عوام کو یہ نہیں بتایا گیا ہے۔ جس قوم کے کروڑوں غریبوں کے پاس چائے سے روٹی کھانے کو پیسے نہیں ہیں، اسے یہ بتایا گیا ہے کہ پھلوں کے رس پر عائد فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کی جا رہی ہے۔ غریب کے گھر کا ماہانہ کرایہ بڑھ گیا ہے، لیکن جاگیرداروں کے لیے یہ سہولت فراہم کی گئی ہے کہ زرعی اجناس کے گوداموں کو ٹیکس چھوٹ دینے کی تجویز ہے۔ کورونا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے روزگار تباہ ہو گئے اور بہت سے افراد نے آن لائن چھوٹا موٹا کاروبار شروع کیا تو پتہ چلا کہ ای کامرس کو صرف تک نیٹ میں شامل کرنے کی تجویز ہے۔ اس ضمن میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ نیا محصول صرف بڑے کاروبار کو لاگو ہوگا یا چھوٹا موٹا کاروبار کرنے والے کی گردن بھی ناپی جائے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے
66 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। इस तजवीज़ से पता चलता है कि हम अपने साथ कितने मुखलिस हैं। वज़ीर मसूद का कहना था कि अमीरों से कहा जाएगा कि अपने हिस्से का वाजिब अदा टैक्स अदा करें, यानी जिन्होंने कानून की ना सुनी उन्हें महज दरख्वास्त करके राज़ी कर दिया जाएगा। अलबत्ता इनकी जगह अगर गरीब होता तो इससे दरख्वास्त करने की बजाय कानून की ताकत इस्तेमाल करने की धमकी दी जाती। टैक्स फ्री लिस्ट। हुकूमत ने अगले माली साल में मौजूदा साल के मुकाबले में 23% ज्यादा टैक्स हासिल करने का हदफ रखा है। यह हदफ अगले माली साल में 5800 अरब रुपए रखा गया है। बस यहीं से टैक्स फ्री बजट की कहानी में ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट भी ऐसा कि अवाम की कमर में पल पड़ जाएगा। जाहिर है कि 23% इजाफे का मसला है। पाकिस्तान में तारीखी तौर पर मुल्क की मजमूई टैक्स आमदन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का तवाज़ुन बहुत बिगड़ा हुआ है। मुल्क की मजमूई महसूलात में ज़्यादा हिस्सा इनडायरेक्ट हासिल की मद में आता है, जो सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की शक्ल में खजाने में जमा होते हैं। मुल्क में टैक्स टू जीडीपी का तनासिब निचली सतह पर है, जिसकी वजह बराह रास्त हासिल कीमत में कम रकम का इकट्ठा होना है। अगले माली साल में बड़े टैक्स हदफ के हसूल के लिए हुकूमत को सेल टैक्स और कस्टम ड्यूटी जैसे महासिल में इजाफा करना पड़ेगा, जिसकी कीमत एक आम सारिफ को अशिया महंगे दामों खरीदने की सूरत में चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान में अमूमन यही होता है कि जब टैक्स की शरह बढ़ाई जाती है और ज़्यादा टैक्स वसूल किया जाता है तो सरमायादार या सनतकार कीमतें बढ़ाकर सारों से टैक्स वसूल कर लेता है। पाकिस्तान में अमूमी तासर यही है कि मुल्क में टैक्स देने वालों की तादाद इंतहाई कम है। मुल्क के वज़ीर आज़म ने भी 1 जून 2019 को कौम के नाम अपने एक अहम पैगाम में इस अमूमी तासर को तक़वियत बख्शते हुए आवाम को आगाह किया था कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों में से सिर्फ 1% अफराद टैक्स अदा करते हैं। इमरान खान के मुताबिक दर हकीकत ये 1% टैक्स देने वाले 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम का बोझ उठा रहे हैं। ये बयान सुनकर आम पाकिस्तानियों के जहन में ये सवाल जरूर बुलाया होगा कि रोजाना की बुनियाद पर जो टैक्स वो पेट्रोल, बिजली, गैस, मोबाइल फोन, कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत, अलग हर तरह की अशियाई जरूरिया पर अदा करते हैं, वो किस खाते में जा रहा है। वो लाजमन ये भी सोच रहे होंगे लेवी टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी समेत दर्जनों दीगर टैक्सेस जिनसे इनका रोजाना वास्ता पड़ता है, वो दर हकीकत क्या है? क्या वो टैक्स नहीं जिनका जिक्र वज़ीर आज़म कर रहे थे? दरअसल पाकिस्तान में हासिल की मुख्तलिफ दर्जा बंदियां हैं, जिनमें डायरेक्ट टैक्स, बिला वास्ता टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, बिल वास्ता टैक्स का तज़किरा आम तौर से सुनते हैं। बराह रास्त हासिल। पाकिस्तान में बराह रास्त या डायरेक्ट टैक्सेस में आमदन पर लगने वाला टैक्स, सूबाई ज़री टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स शामिल हैं। आमदन टैक्स यानी इनकम टैक्स अमूमन तनख्वाहदार और कारोबारी तबका देते हैं। आमदन टैक्स के हवाले से हुकूमत ने अवाम को सहूलत देने के लिए सालाना आमदन के हिसाब से दर्जा बंदी कर रखी है। मिसाल के तौर पर इस दर्जा बंदी के तहत सालाना फलां लाख रुपए तक कमाने वाले अफराद इस टैक्स से मुस्तस्ना हैं और फलां से फलां लाख रुपए सालाना कमाने वाले अफराद महज फलां हजार रुपये टैक्स देने के पाबंद हैं। कौम के नाम मज़कूरा पैगाम में वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान में टैक्स देने वाले सिर्फ 1% लोग 22 करोड़ अफराद का बोझ उठा रहे हैं और 8 से 12 लाख सालाना आमदन वाले अफराद पर 2000 रुपये आमदन टैक्स और इससे ज़्यादा कमाने वालों पर आमदन के हिसाब से बिलतरतीब 15, 20 और 25% तक टैक्स लागू किया जाता है। हमारे मुल्क में तनख्वाहदार तबके का टैक्स उनके इदारे जहां वो नौकरी कर रहे होते हैं खुद ही काट लेते हैं। इसे टैक्स एड सोर्स कहा जाता है। कारोबारी अफराद जिनकी सालाना आमदन 12 लाख रुपए तक है,
ان के लिए टैक्स की शरह वही है जो तनख्वाहदार तबके के लिए है। 12 तक 24 लाख रुपए सालाना आमदन वाले अफराद पर 5% टैक्स लागू होता है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा शरह 29% है जो 50 लाख सालाना कमाने वाले अफराद पर लागू होती है। कारोबारी अफराद से ये टैक्स तब लिया जाता है जब वो FDR में अपने सालाना गोशवारे जमा कराते हों, वरना इनका शुमार इन पाकिस्तानियों में होता है जो टैक्स अदा नहीं करते। प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से भी हुकूमत ने मुख्तलिफ दर्जा बंदियाँ कर रखी हैं और वफाकी और सूबाई सतह पर इनकी शरह मुख्तलिफ है। प्रॉपर्टी की नोयत पर भी मुख्तलिफ शरह आयद होती है। अगर प्रॉपर्टी टैक्स को आसान अल्फाज में बयान किया जाए तो अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी से हासिल होने वाली आमदन 2 लाख रुपए तक है तो आप टैक्स से मुस्तस्ना हैं। आयद होने वाली प्रॉपर्टी टैक्स की ज़्यादा से ज़्यादा शरह 25% है। इसी तरह सूबाई ज़री टैक्स की भी मुख्तलिफ दर्जा बंदियाँ हैं और हर सूबे के लिहाज से आयद टैक्स की शरह अलहदा होती है। बिलवास्ता महासिल। बिलवास्ता या इनडायरेक्ट महासिल वो हैं जो तकरीबन हर पाकिस्तानी अदा करता है और हुकूमत मुख्तलिफ ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया पर इनका इतलाक करके अवाम की जेब पर बोझ डालती है। इनमें आम फहम जनरल सेल टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स ऑन सर्विसेज, कस्टम ड्यूटी और मुतअद्दिद लेवीज टैक्स शामिल हैं। मुल्क में लागू टैक्स सेल टैक्स की ज़्यादा से ज़्यादा शरह 17% है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की अमूमी शरह 10% है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी तमाम नहीं बल्कि मखसूस अशिया पर लागू होती है, मसलन सिगरेट वगैरह पर। इसके बाद एक और टैक्स सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है जो सूबाई सतह पर नाफिज किया जाता है और इसकी शरह का तयन भी सूबे करते हैं, मगर इस टैक्स की अमूमी शरह 16% है। कस्टम ड्यूटी टैक्स की शरह का तयन दरामदी मसनूआत की नोयत और तादाद पर होता है। आम इस्तेमाल की जिन चीज़ों पर यह लागू होता है इनमें इम्पोर्टेड चॉकलेट, गाड़ियाँ और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान शामिल है जिन पर 20% शरह आयद होती है। इन महासिल के बाद इकसाम की टैक्स लेवीज और सरचार्ज टैक्स आयद किए जाते हैं जो अमूमन पेट्रोल, CNG, LNG, बिजली और गैस के बिल और टेलीफोन के बिल में शामिल करके आयद की जाती हैं। इनकी शरह का तयन हुकूमत वक्तन फवक्तन करती है। एक और टैक्स जो आम साबित की जेब पर भारी पड़ता है वो विद होल्डिंग टैक्स है जिसकी कम अज कम शरह 10% है। इसी तरह बैंक से नकद रकम निकलवाने पर भी हुकूमत ने टैक्स नाफिज कर रखा है जिसके मुताबिक ऐसे अफराद जो फाइलर्स हैं इनके लिए इसमें छूट दी गई है। नॉन फाइलर्स के लिए 50,000 से ज़्यादा रकम निकलवाने पर 7% और रकम ट्रांसफर करने पर 6% टैक्स कटौती की जाती है। इसी तरह मुल्क में ज़्यादातर महासिल बिलवास्ता निज़ाम से हासिल होते हैं और वो तकरीबन हर पाकिस्तानी अदा कर रहा है। इस बजट में नए टैक्स तो नहीं लगे लेकिन पुराने टैक्स ज़रूर बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में 160 अरब का इजाफा कर दिया गया है जिसका बोझ अशियाए नोट से लेकर हर शोबे पर पड़ेगा। आइंदा माली साल के लिए FDR का टैक्स टारगेट 58 खरब 29 अरब रुपये है। नॉन फाइलर्स के लिए बिजली महंगी कर दी गई है और वो 25,000 रुपये के बिल पर 7.5% होल्डिंग टैक्स देना होगा। LNG, सिगरेट, चॉकलेट, मेकअप के सामान, शैम्पू, परफ्यूम, दरामदी खुराक और सोने के जेवरात पर ड्यूटीज में इजाफा किया गया है। ताहम तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स स्लैब में कोई तब्दीली नहीं की गई है। इक़्तिसादी माहिरीन के मुताबिक मुल्क में बहुत से बराह रास्त महासिल भी बिलवास्ता महासिल की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। अहम बात यह है कि विद होल्डिंग टैक्स की मद में इकट्ठा होने वाली रकम का तकरीबन 72% बराह रास्त महासिल की मद में होता है। इसी तरह और भी बहुत से ऐसे बिलवास्ता महासिल हैं जो हुकूमत मुख्तलिफ सूरतों में अवाम की जेब से निकलवाती है और फिर भी ये तासर देती है कि मुल्क में कोई टैक्स नहीं देता। हकीकत यह है कि मुल्क में ज़्यादातर टैक्स बिलवास्ता निज़ाम से हासिल हो रहा है और वो तकरीबन हर पाकिस्तानी अदा कर रहा है। गोशवारे जमा कराने वाले
मुल्क में सालाना टैक्स गोशवारी जमा कराने वालों की कुल तादाद तकरीबन 20 लाख है। तहम हुकूमत की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों को टैक्स नेट में लाया जाए। माहिरीन इक़्तिसादियत कहते हैं कि वो सरकारी लोगों के इस बयान से मुतफिक नहीं है कि पाकिस्तान में सिर्फ 1% लोग टैक्स अदा करते हैं। सरकारी लोग इस बारे में बहुत ज़्यादा गलत अदाद-ओ-शुमार बताते हैं जिनसे इत्फाक नहीं किया जा सकता। सरकारी लोगों को ये कहना चाहिए कि टैक्स फाइलर्स की तादाद कम है, ना कि टैक्स देने वालों। क्या महासर का ये निज़ाम पायदार है? हमारे महासर जमा करने के मौजूदा निज़ाम के बारे में माहिरीन का कहना है कि अंदरूनी और बैरूनी कर्ज़े मईशत के इस्तेहकाम के लिए कोई पायदार हल हरगिज़ नहीं है, बल्कि यह वक़्त गुज़ारी के लिए उठाया जाने वाला महंगा इक़दाम है। माजी में कम व बेश हर हुकूमत को मजबूरन आलमी मालियाती इदारों से रजू करना पड़ा। IMF की कड़ी शराइत की नागवारी और इन शराइत के मनफी असरात से अवाम बुलबुला उठते हैं। मुखालिफिन हुकूमत पर तनकीद के तीर बरसाते नहीं थकते, लेकिन दर हकीकत यह है कि पाकिस्तान की कम व बेश तमाम हुकूमतें एक गैर लचकदार टैक्स सिस्टम और इस निज़ाम में बराह रास्त महासिर से ज़्यादा बिलवास्ता महासिर पर इन्हसार करती रही हैं। इससे मईशत की तवील मियाद नशो नुमा पर मनफी असरात मरतब होते रहे हैं। इसी लगे बंदे टैक्स के निज़ाम का कमाल है कि 10-15 बरसों का मजमूई रिकॉर्ड देखें तो मसूलात का 60% या इससे भी ज़्यादा हिस्सा बिलवास्ता टैक्सेस से इकट्ठा किया जाता रहा है। इनमें सबसे ज़्यादा इन्हसार विद होल्डिंग टैक्स पर होता है, जो अदायगी के मरहले पर ही मुनहा कर लिया जाता है। विद होल्डिंग टैक्सों का निफाज और इसके महसूलात की वसूली हुकूमती मशीनरी के लिए कदरे आसान होती है, लेकिन इसके मईशत, पैदावार और कारोबारी मसाबकत पर बहुत मनफी असरात मरतब होते हैं, जो बिलअमूम महंगाई और पैदावारी लागत में इजाफे की शक्ल में सामने आते हैं। इसके बावजूद माजी में जब भी टैक्स के निज़ाम और टैक्स मशीनरी में इस्लाहात का दौर डाला गया, इस्लाहात का ख्वाब तशन्ना ही रहा। जामिया निज़ाम की ज़रूरत। तरक्की याफ्ता ममालिक हों या हम जैसे तरक्की पजीर ममालिक, खुशी खुशी टैक्स लेने पर आमादा अफराद कम ही मिलते हैं। चुनांचे किसी भी मजबूत मईशत के लिए ज़रूरी है कि महासिल का ऐसा जामिया निज़ाम तरतीब दिया जाए जिसमें इसकी शरह बिलवास्ता और बिलावास्ता टैक्स के तनासर में तवाज़ुन, टैक्स नेट की वसअत और नागज़ीर शोबों के लिए आर्जी राइज या मुकम्मल इस्तिस्ना जैसे इक़दाम के ज़रिए इक़्तिसादी नशोनुमा, मुलाज़मतों, सरमायाकारी और बचतों को फ़रोग़ मिल सके। ऐसे निज़ाम के ज़रिए हुकूमत कांसी और महासिल को अपने माली वसाइल में इजाफे के लिए इस्तेमाल करने के काबिल होती है, बल्कि महासिल की वसूली के तरीक़ाकार के ज़रिए इक़्तिसादी नाहमवारी कम करने, इलाकाई अदम तवाज़ुन करने, सरमायाकारी के फ़रोग़, मुलाज़मतों के इम्कानात में वसअत, वसाइल की तक़सीम नौ और मईशत के कई शोबों में मनफी रुझानात, मसलन सट्टाबाज़ी, कीमतों पर मसनूई गठजोड़, तलब और रसद के तवाज़ुन को दरहम बरहम करने, ज़ख़ीरा अंदोज़ी वगैरह की हौसला अफ़ज़ाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मईशत की मजबूती में टैक्स के ढांचे के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि टैक्स का निज़ाम हिमागीर हो, टैक्स नेट वसी हो, इसके तनासब में खपत की बुनियाद पर और बिला वास्ता टैक्स का तनासब ज़्यादा हो ताकि ज़्यादा कमाने और वसाइल के हामिल अफराद भी इसी हिसाब से महासिल अदा करें, ना कि बिल वास्ता महासिल की आड़ में बहुत कम टैक्स देकर बच निकलें। हमारे निज़ाम की एक तलख हकीकत ये भी है कि महासिल के निज़ाम में बदअनवानी, गैर दस्तावेजी मईशत के फैलते हुए हजम, महासिल की अदायगी से गुरेज के रुझानात और बुनियादी इस्लाहात से मुसलसल चश्मपोशी ने हमें इस हाल तक पहुँचा दिया है कि 22 करोड़ की आबादी में फाइडर्स की तादाद बहुत कम है। माहिरीन के मक़ौल पाकिस्तान की मजबूत मईशत के लिए महासिल को मुतवाज़न अंदाज में नए सिरे से तरतीब देने, बेलाग अंदाज में इसके इतलाक, हिमागीर, शफाफ और कठिन से पाक निज़ाम की तरफ पेशरफ्त एक इख्तियारी फैसला नहीं, बल्कि अब ये इक़्तिसादी इस्तेहकाम की नागुज़ेर ज़रूरत है। मुल्क को दरपेश इक़्तिसादी चैलेंजेस से निपटने के लिए टैक्स का निज़ाम
دیگر ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کی طرح ایک مؤثر اختیار کے طور پر استعمال کرنے کا ہنر سیکھنے اور اسے روبہ عمل لانے کے لیے سیاسی و انتظامی پختگی اختیار کرنے کے سوا ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں۔ پھر یہ کہ نئے پاکستان کے لیے ٹیکس کا نیا اور عادلانہ نظام ضروری ہے جو دولت کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنا کر امیر اور غریب کے درمیان بڑھتے ہوئے فرق کو کم کرے۔ ہمارا موجودہ ٹیکس سسٹم غیر متوازن اور زمینی حقائق سے متصادم ہے، جس کی وجہ سے غربت مسلسل بڑھ رہی ہے، جو ملکی سلامتی کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ ملکی نظام چلانے کے لیے بالواسطہ محاصل پر انحصار تقریباً 90% تک پہنچ چکا ہے، جس کی وجہ سے عوام غربت کی دلدل میں دنس رہی ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر سنگین معاشرتی مسائل بھی جنم لے رہے ہیں۔ ٹیکس کے نظام کی توجہ اشرافیہ کے وسائل میں مسلسل اضافے کے بجائے براہ راست محاصل کے ذریعے عوام کی فلاح اور دولت کی منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے، تاکہ تمام وسائل ایک چھوٹی سی اقلیت کی طرف منتقل ہونے کا سلسلہ بند کیا جا سکے اور عوام کے مسائل میں کمی لائی جا سکے۔ ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ محاصل کے نظام کی بہتری کے لیے مقامی ماہرین پر انحصار کیا جائے، کیونکہ غیر ملکی ماہرین جن کی ملکی حالات کا ادراک نہیں ہوتا، ان کی سفارشات پر عمل درآمد کرنے سے نظام کو مزید پیچیدہ بنانے کے علاوہ کوئی نتیجہ حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حکومت کو ٹیکس گزار اور ٹیکس حکام کے درمیان بد اعتمادی کی فضا ختم کرنا ہوگی، جس کے نتیجے میں ٹیکس نیٹ پھیلے گا اور ملک میں عدم مساوات کی عالمی درجہ بندی میں 152 ممالک میں 139ویں نمبر سے اوپر جائے گا۔ اور اب یہ ضروری ہو چکا ہے کہ حکومت تمام شعبوں پر منصفانہ ٹیکس عائد کرے تاکہ ملکی ترقی کا عمل تیز ہو سکے۔ اللہ حافظ۔